نیوز بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ شہریوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا۔ مارکیٹ سے سرکاری آٹا غائب جبکہ پرائیویٹ آٹے کی مہنگے داموں فروخت جاری ہے۔ تاخیر اندوز مافیا ایک مرتبہ پھر پر نکالنے لگا۔ ملتان میں مارکیٹ سے سرکاری آٹا غائب، پرائیویٹ آٹے کی مہنگے داموں فروخت جاری۔ پرچون کی دکانوں پر آٹا 110 روپے فی کلو فروخت کیا جانے لگا۔ شہریوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں مارکیٹ میں سرکاری آٹے کے بورڈ تو لگے ہوئے ہیں لیکن دکانوں سے آٹا نہیں مل رہا۔ سرکاری آٹا تو مل نہیں رہا، جہاں بھی جاتے ہیں سرکاری آٹا نہیں ہے، وہ دوسرا مہنگا کر دیا انہوں نے، 200-300 مہنگا کر دیا، تو کیا کریں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے آٹے کا تھیلا لے لیتے تھے، اب 2-3 کلو لے کر گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ سر جب پہلے تھوڑا سا آٹا سستا تھا تو اس ٹائم تو لیا جاتا تھا کہ چلو پورے کا پورا لے لیتے تھے، 10 کلو کا تھیلا لے لیتے تھے یا 20 کلو کا تھیلا لے لیتے تھے۔ اب یہ حال ہے کہ 2 کلو 3 کلو سے اوپر ہم سے نہیں لیا جاتا، غریب بندہ کیا کرے۔ بالکل ایسے ہی ہے جی، بہت زیادہ مہنگائی ہے اور جو ہے یہ آٹے کا جو ہے نا لینا مشکل ہو گیا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ ان کو حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر توجہ دیں، آٹے کے اوپر۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ اگر کہیں سرکاری آٹا موجود ہے بھی تو اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ آٹے کی قیمتوں کی نگرانی کریں اور معیار بہتر کرائیں۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ فراز رمضان، روہی، ملتان۔ بھاولپور میں گزشتہ ہفتے 3700 روپے میں ملنے والی گندم 3850 روپے فی من تک پہنچ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں آٹا بھی مہنگا، 15 کلو آٹے کا تھیلا 1650 روپے تک فروخت ہونے لگا۔ چکی کا آٹا 110 سے 120 روپے کلو تک جا پہنچا۔ بھاولپور کی غلہ منڈی میں گندم کی قیمت 3800 روپے فی من تک پہنچ گئی۔ گندم کی قیمت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے گندم کی قیمت 3700 روپے فی من تھی۔ بھاولپور کی اوپن مارکیٹ میں آٹا بھی مزید مہنگا ہو گیا۔ چکی کا آٹا 110 روپے فی کلو سے 120 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ منڈی کے آڑتی کہتے ہیں اس وقت گندم کی طلب زیادہ اور رسد کم ہے۔ فلور ملز بھی 3800 روپے فی من کے حساب سے گندم خرید رہی ہیں۔ ابھی گندم شروع نہیں ہوتی، ریٹ پہلے نکال دیتے ہیں، جب گندم سر پہ آتی ہے ریٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ یہ صرف گندم کے ساتھ نہیں، ہر چیز کے ساتھ یہی کر رہے ہیں۔ آڑتیوں کا مزید کہنا ہے کہ حکومت گندم کی قیمت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اگر اقدامات نہ ہو تو اس وقت گندم 5000 روپے فی من تک ہو۔ دیگر صوبوں اور وفاق میں گندم کے ریٹ کہیں زیادہ ہیں۔ فلور ملز سے 15 کلو آٹے کا تھیلا 1650 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ کا بھی کافی حد تک گرپ ہے، اگر یہ تھوڑی سی بھی ڈھیلی کر دے نا گریب، یہ گندم 5000 تک جا سکتی ہے۔ یہ گورنمنٹ کی کوششوں کی وجہ سے یہاں 3800 یا 3600 یا 3700 یہاں کھیل رہی ہے۔ کسان سے 2200 روپے فی من خریدی جانے والی گندم اس وقت نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ بھاولپور میں ہی غلہ منڈی کے باہر گندم کا ریٹ 4000 روپے فی من تک چل رہا ہے۔ فلور ملوں کو ملنے والے کوٹے سے بننے والا آٹا شہر میں نظر نہیں آ رہا۔ کیمرہ مین شاہ سکلین کے ساتھ رضا ملک، روہی، بھاولپور۔ جنوبی پنجاب میں گندم اور آٹے کی قیمتیں بے قابو، شہری پریشان ہو گئے۔ میاں چندوں میں 10 کلو آٹے کا بیت 910 سے بڑھ کر 970 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ ادھر عبدالحکیم میں ملز نے 10 اور 20 کلو آٹے کی پیکنگ کی سپلائی بند کر دی ہے۔ دوسری جانب لودھرا میں آٹا، گھی، کوکنگ آئل اور چینی انتظامیہ کے کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ جنوبی پنجاب میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافے سے عوام پریشان۔ 10 کلو آٹے کا بیگ 910 سے بڑھ کر 970 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ 15 کلو آٹے کا بیگ 1500 سے بڑھ کر 1650 روپے کا ہو گیا۔ درجہ اول گھی 502 اور درجہ دوم کا گھی 440 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ دال مونگ 380، دال مسور 255، دال چنا 255 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ ایک آئٹم کا ریٹ کم ہوتا ہے، دوسری کا بڑھ جاتا ہے۔ عبدالحکیم میں بھی آٹے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، مارکیٹ میں 10 اور 20 کلو آٹے کی پیکنگ کی سپلائی بند ہو گئی۔ فی کلو آٹے کی قیمت 60 روپے سے بڑھ کر 110 روپے تک پہنچ گئی۔ سیلاب متاثرین آٹے کی بڑھتی قیمتوں سے شدید پریشان کہتے ہیں حکومت فلور مل مافیا کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے۔ کسانوں سے سستی گندم خرید کر عوام کو مہنگا آٹا بیچا جا رہا ہے۔ ادھر لودھرا میں آٹا، گھی، کوکنگ آئل اور چینی انتظامیہ کے کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ ڈی سی جنرل لیاقت علی گیلانی کی زیر صدارت اجلاس میں ضلعی افسران، تاجران اور صارفین کے نمائندگان کی شرکت۔ ضلع بھر میں آٹا حکومتی پالیسی کے مطابق فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے
अशेख और अनोश के नर्ख भी मुकर्रर कर दिए। ADCG का कहना था कि चीनी मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक फरोख्त होगी। तंदूरी रोटी 14 रुपए, नान सादा 120 ग्राम 20 रुपए के नर्ख मुकर्रर किए गए। ADCG का कहना है कि सरकारी निर्खों की खिलाफवर्जी करने वाले सजा भुगतेंगे। रहीम यार खान में इंसुलिन समेत जरूरी दवाइयों की किल्लत, कीमतें भी बढ़ा दी गई। अब तो कीमतें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि अद्वियात इलाज की बजाय मरीजों के लिए दर्द बन गई हैं। जिंदगी बचाने वाली दवाइयाँ ऐसी नायाब हुई कि मिलती ही नहीं, और मिल जाएं तो कीमत इतनी कि जेब भी खाली हो जाए। इंसुलिन, ब्लड प्रेशर, ऑयल ड्रॉप, दिल के अमराज, सब अद्वियात की कीमत आसमानों को छू रही हैं। अद्वियात अब इलाज नहीं बल्कि दर्द बढ़ाने का सबब बन गई हैं। फार्मेसी वाले कहते हैं दवाइयाँ महंगी, सप्लाई कम और खरीदारों के सवालात ना खत्म होने वाले। दवाई लाओ तो रेट बढ़ा हुआ, रेट बताओ तो लोग बहस करने लगते हैं। 800 की हेमालेन अब 1630 रुपए की हो गई। मिक्स स्टार्ट 990 से बढ़कर 1173 रुपए। ट्राईमेड 880 से महंगी होकर 1130 रुपए तक पहुंच गई। कैंपोडीन 25 mg एक हफ्ते में 380 से बढ़कर 480 तक जा पहुंची। कोडारजोल 15 दिन में 960 से महंगी होकर 1260 रुपए की हो गई। मरीजों के लिए जिंदगी का हर सांस दवा का मोहताज है, मगर दवा अब जेब की कीमत पर नहीं बल्कि नसीब से मिलती है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही न्यूज, रहीम यार खान। सोने की ब्रेक्स फेल, कीमत बढ़ने का सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा। 2 रोज में सोना 15,000 रुपए फी तोला महंगा हो गया। सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 4,35,000 रुपए फी तोला तक पहुंच गया। आम आदमी के लिए बेटी के जेवर बनाना नामुमकिन हो गया। सोने की कीमत में तेज तरीन इजाफा, बढ़ती हुई कीमत की वजह से दुल्हनों के लिए जेवरात पहनना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई देता है। सोने की बढ़ती हुई कीमत ने जहां दुल्हनों के जेवरात पहनने के ख्वाब चकनाचूर किए हैं, वहीं सुनारों का कारोबार भी शदीद मुतासर किया है। सुनारों का कहना है कि आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है, जिसका बराह रास्त असर मुकामी मार्केट पर पड़ा है। सोने का रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुका है। उससे बिल्कुल ऐसे ही है कि दुकानदार बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। कस्टमर तो अब लेने से रहा, अब जो हमारी गोल्ड की सनत है वो बिल्कुल डूबने के ऊपर आई हुई है। हमारा जो छोटा कारीगर तबका था वो बिल्कुल बेरोज़गार हो चुका है इसकी वजह से, और जो हमारा अच्छा शॉपकीपर है वो भी ना बिकने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों में है। सोने की कीमत में आए रोज इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सोना आम शहरियों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। वालिदैन के लिए अब बेटियों के लिए जेवरात बनाना पहले जैसा आसान नहीं रहा। कैमरामैन उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। दरिया सतलुज एक मरतबा फिर जनूबी पंजाब में तबाही मचाने लगा। जलालपुर, पीरवाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी। जमीनें दोबारा ज़ेर-ए-आब से किसान शदीद परेशान हैं। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से फौरी सर्वे करवाने और इमदाद देने की अपील की है। काम पर दरियाए सतलुज के पानी में फिर इजाफा, किसान परेशान, फसलों के नुकसान से किसानों को माली बहरान का सामना। मुतासरा किसानों का कहना है कि पहले वाले सैलाब से ही मकानात और फसलें तबाह हो चुकी हैं। हाल कोई सर्वे नहीं किया गया। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से फौरी सर्वे करवाने और इमदाद देने की अपील कर दी। उधर जलालपुर, पीरवाला के जनूब मगरब में सतलुज के नए सैलाबी रेले की आमद। शुजातपुर, आदपुर, बस्ती सावन, दुरआपुर, शुजातपुर और लंगर समेत कई इलाकों में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा हो गया। सैलाबी पानी एक बार फिर तेजी से शहर की हिफाजती बंदों की जानिब बढ़ रहा है। मुतासरीन का कहना है कि बहाली का काम शुरू न हुआ था कि नए रेले ने बाकी मानदा इमलाक भी मुतासर कर दी। पानी को रोकने के लिए इंतजामिया बंद बांधे और लोगों को सहूलियात फराम करे। दूसरी तरफ मुबारकपुर के इलाका अब्दुल्लापुर में एक बार फिर सैलाबी पानी दाखिल हो गया, जिससे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। गंदम की काश्त ताखीर का शिकार होने से किसान शदीद परेशान हैं। मुतासरीन के पास सर्दियों के लिए छत का भी कोई इंतजाम नहीं। अब्दुल्लापुर में घरों के इर्द गिर्द पानी जमा से निजाम जिंदगी मफलूज है। हका मकीनों ने आला हुकाम से फौरी इमदाद फराहम करने की अपील कर दी। नौशेरा जदीद की बस्ती बंद वाली के मुकाम पर सतलुज के किनारे पानी में फिर इजाफा हो गया। पानी में इजाफे से किसानों को शदीद माली नुकसान का खदशा है। परेशान हाल काश्तकारों का कहना है कि 10 से 15 रोज में गंदम काश्त करनी थी, मगर पानी बढ़ने से एक बार फिर उनकी जमीनें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। किसानों ने हुकूमत से मदद की अपील करते हुए कहा है कि इलाके में फौरी सर्वे टीमें रवाना की जाएं। अब आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर ऑफिस के सामने रात के सैलाब मुतासरीन का एहतजाज। मुतासरीन खैमों के हसूल के लिए सुबह से एसी ऑफिस के बाहर मौजूद। मुतासरा एहतजाज में बड़ी तादाद में मौजूद मर्द व खातीन शामिल हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना इमरान सईदी से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
आज बिल्कुल इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है दर्जनों सैलाब मुतासिरीन मौजूद हैं, जिनमें जो है मर्द खवातीन जो सुबह से जो है यहाँ पर मौजूद हैं। इनको तकरीबन इस वक्त 15 से 16 घंटे हो चुके हैं और ये एसी ऑफिस में मौजूद हैं। इनकी जानिब से मुबैना तौर पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि यहाँ से जो है राशन है या खैमे हैं वो यहाँ से जो है बासर लोगों को दिए जा रहे हैं। अभी भी जो रक्शे हैं वो लोड होकर जो है यहाँ से जा रहे हैं। जब रोही टीम अंदर गई तो अंदर जो है कुछ लोग मौजूद थे, रक्शे थे, गाड़ियां थी जो रोही टीम को देख के वहां से जो है चले गए हैं। मेरे साथ सलाम मुतासिरीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अम्मा जी, क्या आखसो तुसा? मेरा पुत्र साकू कोई चीज नहीं मिली, साढ़े माल लुड़ गया, साढ़े खटड़े रुल गए, साढ़े दाने रुल गए, साढ़े बच्चे तले पेन जोलते देख सकते हो। असा राशन गिरना दू साकू डंड के मार भजा छोड़ना, साकू कुछ भी नहीं मिला। असा भूखे करूं, साकू कुछ भी नहीं मिला। कितने बजे दे तुसा इत्थे आए हो? असा सवेर दे आए से। अच्छा, हाँ सवेरे 7 बजे दे आए से। रुलाल होन दे दू हसन वाले दे आ गए, उन्हें तो डाले लड़ी ने पेन साकू सोटा मार काट छोड़ा। चागन सामान? हाँ सामान चागन वाला बिया चावन आए खड़े हैं। अच्छा, 5-6 रक्शे तू चागन जरी काली कार वेंदी पई ए नासिर खान दे बिराद दी कार है। अच्छा, बिल्कुल। और भी मेरे साथ मुतासिर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अम्मा जी, तुसा दसो तुसा कित्थों आए वे? वही की जात वाले मेरा दू कोठा दुआई कोठा दट्टा पेन घर दा पानी मेरा कानी। अच्छा, नलका ही मेरा बाइक ने वो कहीं नहीं बनवाया ते मेरे छोटे छोटे बाल डाले बोले बाल और टियार घर कढ़न पड़े मेरे घर वाले दी थाई गलतियां तो उड़े अजा महू को पच्चा खड़ी रखवेंगे। बिल्कुल जी। जो सैलाब मुतासरीन हैं इस वक्त सरापा एहतजाज है, इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से कि इस वक्त भी यहाँ पर जो है 2 ट्रक खैमों के मौजूद हैं, लेकिन वो 62 लोगों को दिए जा रहे हैं। मैंने जैसा आपको पहले बताया, रोही टीम अंदर गई, वहां पर रक्शे खड़े थे, कुछ लोग वहां पर खड़े थे जो रोही टीम को देखकर जो है वहां से चले गए। तहसीलदार से जब इस हवाले से मौकफ लेने की कोशिश की गई तो उनकी जानिब से कोई मौकफ नहीं दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर नुमान महमूद का कहना है कि इस हवाले से जो है मैं इंक्वायरी करवाऊंगा, जो रिपोर्ट होगी उसके मुताबिक जो कार्रवाई। राना इमरान, अपडेट करने का शुक्रिया। दरिया सतलुज एक मरतबा फिर जनूबी पंजाब में तबाही मचाने लगा। जलालपुर, पीरवाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी। जमीनें दोबारा ज़ेर आब आने से किसान शदीद परेशान हैं। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से फौरी सर्वे करवाने और इमदाद देने की अपील की है। हथेजी के मुकाम पर दरियाए सतलुज के पानी में फिर इजाफा, किसान परेशान, फसलों के नुकसान से किसानों को माली बहरान का सामना। मुतासरा किसानों का कहना है कि पहले वाले सैलाब से ही मकानात और फसलें तबाह हो चुकी हैं। हाल कोई सर्वे नहीं किया गया। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से फौरी सर्वे करवाने और इमदाद देने की अपील कर दी। उधर जलालपुर पीरवाला के जनूब मगरब में सतलुज के नए सैलाबी रेले की आमद। शुजातपुर, दादपुर, बस्ती सावन, दुरआपुर, शुजातपुर और लंगर समेत कई इलाकों में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा हो गया। सैलाबी पानी एक बार फिर तेजी से शहर की हिफाजती बंदों की जानिब बढ़ रहा है। मुतासरीन का कहना है कि बहाली का काम शुरू न हुआ था कि नए रेले ने बाकी मानदा इमलाक भी मुतासर कर दी। पानी को रोकने के लिए इंतजामिया बंद बांधे और लोगों को सहूलियात फराम करे। दूसरी तरफ मुबारकपुर के इलाका अब्दुल्लापुर में एक बार फिर सैलाबी पानी दाखिल हो गया, जिससे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। गंदम की काश्त ताखीर का शिकार होने से किसान शदीद परेशान हैं। मुतासरीन के पास सर्दियों के लिए छत का भी कोई इंतजाम नहीं। अब्दुल्लापुर में घरों के इर्द गिर्द पानी जमा से निजाम जिंदगी मफलूज है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से फौरी इमदाद फराम करने की अपील कर दी। नौशेरा जदीद की बस्ती बंद वाली के मुकाम पर सतलुज के किनारे पानी में फिर इजाफा हो गया। पानी में इजाफे से किसानों को शदीद माली नुकसान का खदशा है। परेशान हाल काश्तकारों का कहना है कि 10 से 15 रोज में गंदम काश्त करनी थी, मगर पानी बढ़ने से एक बार फिर उनकी जमीनें ज़ेरे आब आ गई हैं। किसानों ने हुकूमत से मदद की अपील करते हुए कहा है कि इलाके में फौरी सर्वे टीमें रवाना की जाएं। बहावलपुर शहर के मुतादिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1.5 साल से खराब। शहरी पीने के साफ पानी को तरस के MNA मलिक इकबाल और डेप्टी स्पीकर जहीर चन्नर के घर से 100 मीटर की दूरी पर मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट भी खराब। शहरियों की शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने नोटिस न लिया। बहावलपुर शहर के मुताद्दद इलाकों के शहरी पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम। जिला इंतजामिया के 25 फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 7 खराब हैं, जबकि 18 फंक्शनल हैं। बड़ी तादाद में फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब होने से बिंद्रा पुलिस, शादरा, भट्टा नंबर 1, सैटेलाइट टाउन, अकब थाना बगदाद, रहमत कॉलोनी, मुहाजिर कॉलोनी और इस्लामी कॉलोनी के मकीन दूसरे इलाकों से साफ पानी लाकर पीने पर मजबूर हैं। लोग यहाँ आते हैं और जो है पानी के बगैर चले जाते हैं। तो 1.5 साल हुआ है, पानी की किल्लत है यहाँ पे।
और ये जो नशाइयों ने यहाँ से मोटर जल गई थी वो उखाड़ के ले गए हैं, टूटियाँ भी ले गए हैं, तो अब ये पानी के बगैर है। हमें पीने का पानी मिलना चाहिए सर, हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इसका कुछ सद्भाव किया जाए। शहरियों का कहना था कि हर जगह गए हैं, 1.5 साल से बिंद्रा पुली का फिल्ट्रेशन प्लांट खराब है, कहीं सुनवाई नहीं हुई। बिंद्रा कॉलोनी में एमएनए मलक इकबाल और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली जहीर इकबाल चन्नड़ के घर के पास मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट की खराबी सवालिया निशान है। इधर अब हजारों घर हैं, जो मसाइल के गरीब गुरबा घर रहते हैं इधर, और हमें इधर जब पानी भरने के लिए आते हैं तो हमें पानी मुहैया नहीं होता। अवामी हलकों का कहना था कि शहर के खराब फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी बहाल करवाया जाए। कैमरामैन शासिक लैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। नाजरीन, शहर मुल्तान के शेरशाह फ्लाईओवर पर लाइट्स न होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि रात के वक्त लाइट्स न होने के बाद हादसात मामूल हैं। इंतजामिया को बारहा दरख्वास्त कर चुके हैं मगर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेरशाह पुल पर और बात करते चलें तो इस पुल की अरसद रात से लाइट्स ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी मुश्किलात का सामना होता है जब पुल पर लाइट नहीं होती? क्या हादसात और वारदातें तो नहीं बढ़ रही? भाई, पहले गर्मियों में तो कुछ सुकून हो गया था, ठीक है। अब ये जब फ्लाईओवर बना है तो मेरे ख्याल से ये 3 से 4 दिन लाइटें जली होंगी, उसके बाद आज तक ये लाइटें नहीं जली। ऊपर एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, वारदातें अब आम हो गई है। जैसे जैसे सर्दी स्टार्ट हो रही है वारदातें आम हो गई हैं अब, ठीक है। बकाया कारोबार हमारे यहाँ इस रोड के बिल्कुल खत्म हो गए हैं। नीचे का रोड टूटा हुआ है, लोग आते नहीं है, ठीक है। हम यूं ही किराया भर रहे हैं, इतना इतना किराया है यहाँ दुकानों का। यहाँ कोई निजाम नहीं है, कारोबार बिल्कुल दरम बरम हुआ है। यहाँ का कारोबार मुतासिर हो रहा है, लाइट्स ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। सर, क्या कहेंगे, कब से ये आखिरी बार कब जली हुई देखा जाए लाइटों? सर, ये टोटल जली 2 दिन है। जब फ्लाईओवर के ठेकेदार ने चार्ज दिया 2 दिन के लिए, उसने ये लाइट्स ऑन करवाई हैं, उसके बाद इलाका ये जो पूरे का पूरा तबाह हो चुका है। ये फ्लाईओवर के हालात ये हैं कि रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज वारदातें हो रही हैं, बिला नागा रोज कोई ना कोई वारदात होती है। वारदात होने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती क्योंकि शो हो जाएगी। तो हमारे लिए मुख्तलिफ मसाइल हैं, कारोबार है नहीं, नीचे का रोड बना नहीं, और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। खासा मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया फिलफोर इस रोड के और इस फ्लाईओवर के देरीना मसले को हल करे ताकि जो शहरी हैं उन्हें। वसीम शहजाद, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। मुल्तान की इंतजामिया ने नित नए डिजाइन के स्पीड ब्रेकर बनाना शुरू कर दिए। कहीं सड़क पर ईंटों से स्पीड ब्रेकर बना दिया तो कहीं स्पीड ब्रेकर इतना ऊंचा कि गाड़ी गुजारना ही नामुमकिन हो गया। मसरूफ तरीन सड़कों पर ईंटों से बनाए गए स्पीड ब्रेकर शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। मुल्तान शहर की मेन सड़कों पर ईंटों से बने स्पीड ब्रेकर शहरियों का इम्तिहान बन गए। गैर मेयारी और ऊंचे स्पीड ब्रेकर से गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचने लगा है। को शिकायत है कि सड़कों पर बने खुरदरे और गैर मेयारी स्पीड ब्रेकर से गाड़ियां झटके खाती हैं, जबकि मोटरसाइकिल सवार अक्सर तवाजुन खोकर गिर जाते हैं। इन स्पीड ब्रेकर से न सिर्फ ट्रैफिक का बहाव मुतासिर हो रहा है बल्कि हादसात के इम्कानात में भी इजाफा हो गया है। ये गैर मेयारी जी, ये मेयारी नहीं है। ये हजारों गाड़ियां यहाँ उल्टती हैं रोजाना यहाँ उल्ट जाती हैं, रिक्शे उल्ट जाते हैं, बहुत नुकसान होता है लोगों का। ये जंप सही नहीं बनाया। कोई डेली गलती होते हैं यहाँ पर, मोटरसाइकिल सवार रश के, लोडर रश के गलती हो जाते हैं यहाँ पर। हर बंदा आने जाने वाला तंग होता है इधर। कैंट 14 नंबर चुंगी, दौलत गेट, शाह जमाल और BZU रोड समेत शहर की मसरूफ सड़कों पर ईंटों से स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, जिन्हें बल्दिया के मुकर्ररा मेयार के मुताबिक तामीर नहीं किया गया। बल्दिया कवानीन के तहत स्पीड ब्रेकर की ऊंचाई, चौड़ाई और निशानात मखसूस पैमाने के मुताबिक होने चाहिए। ताहम बेशतर मकामात पर इन असूलों को यकसा नजरअंदाज कर दिया गया है। पहले सर बहुत मुश्किल होती थी, गाड़ी आने जाने लगती थी नीचे। अभी जो है बहुत माशाल्लाह सही काम हो रहा है, अभी सही बना दिया है। रोही की खबर पर इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए नुसरत रोड पर बने अनोखे स्पीड ब्रेकर तोड़ दिए। शहरियों की शिकायत और रोही की निशानदही पर कार्रवाई की गई। स्पीड ब्रेकर सड़क की सतह से 1 फीट ऊंचा होने की वजह से गाड़ियों के बम्पर टूटना मामूल बन गया था। इंतजामिया ने अब स्पीड ब्रेकर की ऊंचाई कम करके 6 इंच मुकर्रर करने का फैसला किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वसीम शहजाद के साथ माहर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे थाना तरंडा मोहम्मद बना के दूत में मवेशी चौर गैंग मुतहरक, नामालूम चौर 2 मुख्तलिफ वारदातों में 80,000 मालियत की कीमती बकरियां ले उड़े। मवेशी चौर गैंग पुलिस के लिए दर्द सर बन गया। आए रोज चोरी की वारदातों में इजाफा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। नाज़रीन, मुल्क भर में नकली नोट के नाम पर बानी पाकिस्तान की तस्वीर की हुर्मत मुतासिर दुनियापुर के उस्ताद ने गलियों और कचरे में खिलौना नोट देकर इन्हें चुनने की मुहिम शुरू कर दी। टीचर्स का कहना था कि जाली खिलौना नोट पर कायदे आज़म की तस्वीर छपी होने के बायस कौमी वकार मजरूह हो रहा है। मुल्क भर में जाली खिलौना नुमा नोटों की खुलेआम फरोख्त जारी। ये नोट शादियों, तकरीबात और बच्चों के खेल में इस्तेमाल किए जाते हैं जिन पर बानी पाकिस्तान की तस्वीर छपी होती है। अफसोसनाक पहलू यह है कि जब ये नोट गलियों या कूड़े के ढेरों में जा गिरते हैं तो वही तस्वीर पांव तले रोक दी जाती है, जो कौमी वकार के मजरूह होने का बायस बनता है। दुनियापुर के निजी स्कूल टीचर फारूक सईदी ने जाली खिलौना नुमा करेंसी नोट उठाने की मुहिम शुरू कर दी। टीचर का कहना था कि इस मुहिम में तमाम शहरियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। स्कूल की छुट्टी हुई है और हम जब बाहर निकले हैं तो गली में नकली नोट जिसपे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की तस्वीर छपी हुई थी, जिनकी तस्वीर हमारे दिलों, हमारे ज़हनों पर है और हम उनको कायदे आज़म कहते हैं। जमीन पर ऐसे उनकी तस्वीर पड़ी थी कि जैसे हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस तरह तो कोई किसी और मुल्क के बानी की भी तजलील नहीं करता कि जैसे यहाँ पे लोग उन नोटों के ऊपर से गुजर रहे थे और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के ऊपर बाकायदा पाँव पड़ रहे थे। स्कूल में हाजिर हुआ तो मेरे उस्ताद साहब ये नकली नोट उठा रहे थे कूड़े से, तो मैंने उस्ताद साहब से पूछा कि ये क्या कर रहे हो उस्ताद साहब। उस्ताद साहब कहने लगे कि बेशक ये नकली नोट है लेकिन इसके ऊपर हमारे बानी कायदे आज़म की तस्वीर बनी हुई है, हमें इसकी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। तो मैं भी इसके साथ उस्ताद के साथ मिलकर ये नोट उठाने लग गया। टीचर फारूक सईदी का मजीद कहना था कि करेंसी किसी भी मुल्क की पहचान और इज्जत होती है। अफसोस है कि हमने बानी पाकिस्तान की तस्वीर वाले नोट बच्चों के खिलौनों में बदल दिए। मैंने अपने शागिर्दों के साथ ये नोट इकट्ठे किए और बाइज्जत तरीके से जाया किए ताकि मजीद बेहुरमती ना हो। शहरियों का कहना है कि ये मामला नया नहीं, अरसा दराज से मुख्तलिफ इलाकों में इन जाली नोटों की फरोख्त जारी है, मगर हुकूमती इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मरकजी और जिलाई सतह पर किसी भी इंतजामिया ने इस गैर संजीदा अमल पर कोई कार्रवाई नहीं की। हुकूमत अब भी खामोश रही तो ये बेहुरमती मामूल बन जाएगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरें नीचे पड़ी थी, उस्ताद मोहतरम मोहम्मद फरूक साहब इसको उठा रहे थे। हम आला अहदेदार और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस तरह के जो नोट छपाई करते हैं, नकली नोट, उनको बंद किया जाए। हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं मगर ऐसा अमल उनके जहनों में करेंसी और कायदे आज़म के एहतराम को कम कर रहा है। हुकूमत को कौमी निशानात और बानी पाकिस्तान की हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी खिलौना नुमा करेंसी नोट पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। जनूबी पंजाब में इंतजामिया की गफलत के बायस खेलों के मैदान तबाह हो गए। हारूनाबाद का जीना स्टेडियम खस्ता हाली का शिकार, ग्राउंड से घास खत्म, बेंच भी टूट गए। उधर कोटद्दू में म्यूनसिपल स्टेडियम में ना पीने का पानी, न बैठने के लिए मुनासिब जगह दस्तयाब। दूसरी जानिब मंडी सादीगंज में इंतजामिया की गफलत से शहर की वाहिद तफरीह गाह वीरानी का मंजर पेश करने लगी। हारूनाबाद में करोड़ों की लागत से तामीर जिन्ना स्टेडियम खस्ता हाली का शिकार। शहरियों के बैठने के लिए बनाए गए बेंच भी टूट गए। ग्राउंड से घास खत्म, साफ पानी तक मैसर नहीं। नौजवान खिलाड़ी मायूस, कहते हैं स्टेडियम में कम से कम वॉशरूम्स की तामीर कर दी जाए। जबकि इंतजामिया का मौकफ है कि जिन्ना स्टेडियम 2014 में मारूफ कारोबारी शख्सियत ने तमीर करवाया था, अब फंड्स की कमी का सामना है। उधर कोटअद्दू में करोड़ों रुपए से बनने वाला म्यूनिसिपल स्टेडियम टूट फूट का शिकार। न पीने का साफ पानी और न ही बैठने की मुनासिब जगह दस्तयाब है। ग्राउंड में जगह जगह गड़े पड़ने लगे। शहरियों का कहना था कि लाइटनिंग न होने से गैर अखलाकी सरगर्मियां रूज पर पहुंच गई हैं। डिप्टी कमिश्नर फौरी तौर पर इक़दामात करें। जबकि इंतजामिया की गफलत के बायस मंडी सादकगंज की वाहिद तफरीहगाह वीरानी का मंजर पेश करने लगी। झूले और बेंच टूट गए, सफाई न होने से ताफन फैलने लगा। शहरियों का कहना था कि पार्क में बैठने के इंतजाम किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर बावल नगर और चीफ ऑफिसर जिला कौंसल सूरत हाल का नोटिस लें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत रहीम यार खान में भी स्कूल मील प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज। DEO एलिमेंट्री मर्दाना मोहम्मद अशरफ खान चांडिया ने बच्चों में दूध तकसीम करके प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। पहले मरहले में जिला के 1442 सरकारी प्राइमरी स्कूल्स में ज़ेर तालीम 2,05,000 तलबा को दूध और बिस्किट फ्राहम किए जाएंगे। प्रोग्राम के तहत पीर, मंगल और बुध के रोज़ बच्चों को दूध जबकि जुमेरात को बिस्किट दिए जाएंगे।
रहीम यार खान में भी हुकूमत पंजाब के स्कूल मील प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों की ग़िज़ाइयत, सेहत और तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। प्रोग्राम के तहत जिला भर के 1442 सरकारी प्राइमरी स्कूलों में ज़ेर तालीम 2,05,000 बच्चों को दूध और बिस्किट फराहम किए जाएंगे। निज़ाम के मुताबिक पीर मंगल और बुध के रोज बच्चों को दूध जबकि जुमरात को बिस्किट दिए जाएंगे। DEO एलिमेंट्री एजुकेशन मोहम्मद अशरफ खान चांडिया ने बच्चों में दूध तकसीम करके प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उनका कहना था कि ये प्रोग्राम जनूबी पंजाब के बच्चों को सेहतमंद मुस्तकबिल देने के लिए एक अहम संग मील है। वजीर आला मरियम नवाज का विजन है कि हर बच्चा तालीम के साथ अच्छी सेहत भी हासिल करे ताकि वो मुल्क का बाएतमाद शहरी बन सके। स्कूल मील प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाने वाला दूध बच्चों के लिए महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इंतहाई मशकूर हैं CM पंजाब साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, मिनिस्टर एजुकेशन के, सेक्रेटरी तालीम साहब के साउथ के मोस्टली अजला को सिलेक्ट किया गया है स्कूल मील प्रोग्राम में। स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों का मानना था वो दूध बहुत ही मजे का है, ऐसा दूध रोज मिलेगा तो स्कूल आने का भी रोज ही दिल किया करेगा। मैंने आज दूध पिया है, मेरे दोस्तों ने भी पिया है और हम दूध अच्छा लगा हमें। आज हमें सर ने दूध दिया और हमारे सब दोस्तों को भी दिया और हम बहुत मजे का ही और हमें इससे ताकत मिली है। आज हमें दूध मिल रहा है, ये हमारी इससे सेहत भी अच्छी होगी और पढ़ाई भी अच्छी होगी। अफसरान के मुताबिक स्कूल मील प्रोग्राम मई 2026 तक जारी रहेगा। इस दौरान हुकूमत पंजाब की तरफ से मेयार और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी गई हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान।